I welcome you all to Chhayankan, the photography festival of Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, an initiative taken by WaterClick, the photography club of MAIMS and the Department of Journalism and Mass Communication. Chhayankan. It is an art of capturing the most beautiful and serene memories of life in the frame of dreams. Photography is a science and an art of expressing thoughts through the objects surrounding us. Photography is a lifelong habit for many people. Ask a photographer. He'll tell you what worship is. He'll tell you that camera is his God and he its disciple. Photography is an amazing skill which becomes a means of escape and comfort, and act as a means to show how a photographer perceives the world around him. It is a mean of capturing emotion, and once the moment has been captured, it remains there forever. You must have heard that famous line by Ed Sheeran. We keep this love in a photograph. Because 1,000 words hold no comparison to a single picture. So, to celebrate this amazing talent, I, Girisha Singh, and I, Devanshu Verma, welcome you all to Chhayankan 2K15. I would like to thank our sponsors, without whom this event would not have been possible. Our sponsors are MS Media, BEC Express, The Education Tree, Canon, Dcorp, and lastly, The Hike. Oh wait, I just forgot to mention the salient feature of this show. Each and everything here is either being reused or has been made out of waste. So let's give a huge round of applause to students who made this event possible with their creativity and talent. I feel proud to welcome you all to this beautiful and amazing festival. Now let's commence with our event by lighting the lamp. नवं नवं स्पष्ट सुवाक्यदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भव प्रसन्ना वदने मम श्री शवाग्जाड्यतमोपहन्त्री नवं नवं स्पष्ट सुवाक्यदायिनी. Now, I would like to invite Dr. M.K. Bhatt, Director MAIMS, to present bouquet to Dr. Nandkishore Garg, Chairman MAIMS. Dr. Aditya Avasthi to honor Dr. N.K. Kakkar. Dr. V.K. Bhatnagar to honor Dr. Kapai. Now I would request Shefali ma'am to kindly honor Dr. M.L. Goyal, Director MAIMS. Dr. Umesh Pathak to kindly honor Dr. M.K. Bhatt, Director MAIMS. Dr. Nisha Singh to kindly honor Mr. Kamal Narang, Photo Editor, The Hindu.
I would request Mr. Vipul Pratap to kindly honor Ms. Madhu Lomesh, Professor, Aditi Mahavidyalaya. I would request Mr. Bharat Banga to kindly honor Mr. Pradeep Dhawan, CEO, DCOP. Moving forward, let's heat up the atmosphere with a spectacular performance by Samagra, the theatre society of our college. So guys, give them a huge round of applause for Samagra. लालू वो ससुरा कह रहा तो अच्छा सपना था। अरे भाई लोग कैसे हो? पहचाना मुझे? अरे मुन्ना, अरे मुन्ना, अरे मुन्ना बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करता था। खूब पढ़ाओगे, डॉक्टर इंजीनियर न जाने क्या बनाओगे। हाँ सही पकड़े हैं, मैं आपका डॉक्टर मुन्ना, आपका इंजीनियर मुन्ना, आपका IAS मुन्ना, बहन जी आपका लॉयर मुन्ना और आप सबका मैं प्यारा सा मुन्ना। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना, अरे कहना अपनी कहानी चाहता हूँ। तो आओ दोस्तों सुनाओ आपको एक कहानी जो लगेगी आपको कुछ जानी बेचारी। अरे तो नुक्कड़ चल रहा है भाई, ये दाल भी अच्छी बात है। तुम्हारी नुक्कड़ की दाल में मेरी कहानी का तड़का लगाते हैं और पीली दाल बनाते हैं, दोनों साथ में आते हैं और मेरी कहानी नुक्कड़ के जरिए बताते हैं। अरे भाई साहब, हाँ जी आप, अरे इधर देखिए, आपसे बात कर रहा हूँ। जिंदगी बीत जाती है लोगों की ये पता करने के लिए कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और इसी दिक्कत में लगे रहते हैं। पर मुझे तो पता था मुझे क्या करना है। अरे भाई मैं तो जानता था मुझे क्या बनना है, तो मुझे क्यों दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं बताता हूँ, हुआ कुछ है जब मैं पैदा हुआ तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन हुआ क्या है? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? मुन्ना, मुन्ना हुआ है मुन्ना। अरे सच्चे रही हो गली गली मुन्ने की सुन के मैं आई, मुन्ने के बापू ने दो बधाई। मुन्ने की सुन के मैं आई, मुन्ने के बापू ने दो बधाई। काले तरक्की खूब मुन्ना तुम्हारा, पढ़ा लिखा के इसे काबिल बनाना। अरे अपना मुन्ना तो भैया वो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। क्यों भाई, अपने मुन्ने को इंजीनियर बना दो। अरे क्या गिरा दे
अरे भाई अपना मुन्ना तो जर्नलिस्ट ही बनेगा। क्यों भाई, ऐसा गुड सरकारी अफसर बना दो, सबसे अच्छा वही है। अरे अपने मुन्ने को तो वो काले कोट वाला वकील बनाएंगे, वकील। स्कोप है इनमें भी हाई, मुन्ने के बापू दे दो बधाई, मुन्ने की सुन के मैं आई, मुन्ने के बापू दे दो बधाई, मुन्ने की सुन के मैं आई, मुन्ने के बापू दे दो बधाई। हाँ जी, तो माहौल कुछ इस तरीके से था। तो तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं इंजीनियर बन गए। अरे सीए बन गए का? बिजनेसमैन हो गए शायद। तो तुम सरकारी अफसर हो क्या? अरे नहीं भाई नहीं। तो तुम हो क्या? मैं हूँ कला कबाड़। है कला कबाड़? ये क्या है? अरे सबके मन में एक ही सवाल, आखिर क्या है कला कबाड़? क्या ये कोई जानवर है या कोई बीमारी? क्या ये कोई एलियन है या कोई थ्योरी जो किसी के समझ ना आ रही? तो आज समग्र आपको बताएंगे कि क्या है कला कबाड़। सबके मन में एक सवाल, आखिर क्या है कला कबाड़? सबके मन में एक सवाल है, क्या है कला कबाड़? कला कबाड़, कला कबाड़, कला कबाड़, कला कबाड़। चारों ओर मचा है शोर, बस कबाड़ ना कुछ और। अरे बिन बात के राय कबाड़, आखिर क्या है कला कबाड़? बिन बात के राय कबाड़, आखिर क्या है कला कबाड़? कला कबाड़, कला कबाड़, आखिर क्या है कला कबाड़? कला कबाड़, कला कबाड़, आखिर क्या है कला कबाड़? कला कबाड़, कला कबाड़, आखिर क्या है कला कबाड़? अरे मुन्ना कहाँ है? अरे मुन्ना! अर्ज किया है। अल्फाज सुनिए। अर्ज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, क्या बात है भाई, क्या बात है? बहुत ही बढ़िया। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है, पर सुना है कला को लोग मरने भी नहीं देते और जीते जी करने भी नहीं देते। अरे काहे आयो काहे? यार लौंडा स्मार्ट है। अर्ज किया है। तुम भी कर लो। रेनॉल्ड के पापा निशान के नाना। रेनॉल्ड के पापा निशान के नाना ये रिक्शा चला रहा है पप्पू। अरे किसको लेते हो भाई? अरे गरीबों का जो देश बनाया है। अर्ज किया है। करो। यहाँ हर शख्स मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। क्या बात है? हर शख्स जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। वाह। यहाँ हर शख्स मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। वाह भाई वाह। यहाँ हर शख्स मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। आगे बोल। हर शख्स मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। मुन्ना आ गया। यहाँ हर शख्स मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। सर दर्द से दर्द, क्या दर्द है? उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि ये ख्वाब अधूरा है मेरा, वरना जीना तो मुझे भी आता है। अरे अपने मुन्ना भैया वो जैसे छोटे गुलजार। क्या बात कर रहे हो? अरे कसम से 2 लौंडे और थे उधर। अच्छा, लेकिन अपने मुन्ना भैया के आगे चाय कम पानी, ये तो होना ही था। अरे वाह, आज तो मुन्ना भैया ने मार के हिला दी। अरे 2 लड़कियां वही फैन करती थी अपनी। अरे एक अपने जावेद अख्तर साहब, एक अपने मुन्ना भैया। अरे क्या बात है भाई। अरे मेरी तरफ से आज की पार्टी मुन्ना का नाम। अरे फ्यूचर भाई का मुन्ना भैया का चाह गए। टिम टिम दिल पे छेद दिया है।
भैया। अरे जीता रहे भैया बैठो भैया बैठो। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे मुन्ना फर्स्ट प्राइज लाया, शाबाश। राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज। देखो भैया, शाबाश मुन्ना शाबाश। मुन्ना इस साल बेटा 12वीं है तुम्हारी, आगे का क्या सोचा है? ताऊ जी मैं लेखक बनना चाहता हूँ। लेखक बनना चाहते हो? लेखक लिखो भाई लिखो। अरे हम भी तो लिखते थे। बेटा नोट कमाने के लिए क्या करेगा? नोट कमाने के लिए। अरे भैया उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अपना सविता का छोटा है ना। हाँ वो भी इसी लाइन में है। अच्छा। उसकी नौकरी लग जाए इसकी भी लगवा देगा। वो इसकी नौकरी लगवाएगा। वो इसकी नौकरी लगवाना मतलब बढ़िया है भाई, बढ़िया है। बाकी एक छोटा सा काम याद आ गया, वो निपटा के मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? आते रहिएगा। जीता रहे। ताऊ जी राम राम। हाँ जी, तो मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। तो बन जाना कलाकार। यहाँ क्या चिक चिक लगा रखा है तूने? अरे यार मैं तो कब से राजी हूँ, पर तू तो जानता है ना, अगर घर वालों को बताऊंगा तो न जाने क्या क्या सुनाएंगे। यही कहेंगे कि ये सब शौक के लिए बढ़िया है, करियर के लिए नहीं। तुम्हारी मौसी की ननद के चैन के बेटे को देखा है? कभी है कभी? क्या करता है? कवि सम्मेलन में कविता को सुनाता है। अच्छा अब तू नुक्कड़ नाटक करेगा? घर पे कब तमाशा मचा रखा है, तो रोड पे नौटंकी करनी है? अबे तू खाएगा क्या और कमाएगा क्या उसके बाद? अबे सुन, हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती कि टीचर गंदी गंदी शक्लें बना पेंटिंग लाखों में बिके। हमें माना है कि तू फोटो अच्छी खींच लेता है, फिर क्या करेगा? पेज बना लेगा। सोचा फोटो फिर क्या ऐसे बनेगी तेरी पहचान? पागल है तू। अरे नाच गाना करना जनानियों का काम है, कुछ मर्दों वाले काम कर। तेरे जैसे हजार खड़े हैं, क्या होगा तेरा? अपने बाप की सोच जो दिन रात मेहनत करके तेरे लिए कमा के लाता है। मैंने पूरी जिंदगी काम किया और बुढ़ापे में तू मुझे ये दिन दिखाएगा? मिस्टर शर्मा के लड़की को देख कितना लायक है, और तू नालायक कहीं का। अगर तू यही सब करता रहा तो तुझे पेटी कौन देगा? अबे हम मिडिल क्लास लोग हैं, तेरे इन बकवास के खर्चों में हमारे पास पैसे नहीं है। बर्बाद है जिंदगी। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, नालायक तेरे बस की कुछ नहीं है। नो स्कोप। चचा ठेली लगा ले। नो स्कोप। बेटा इन सब में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई करो पढ़ाई। नालायक भैया तो एकदम। ये कला तुझे डुबाएगी, उठाएगी नहीं। अरे इसमें कोई भविष्य नहीं है। नो स्कोप। अबे तू कोई ढंग का काम कर, ढंग का। No scope. And I was left with no hope. प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से उसे जाना होता है। अरे हाँ, तो फिर परिवार छोड़ मैं चला प्यार को आजमाने। जा जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ। देखो मैंने देखा यहाँ एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है? मैं आई आई आई। ये जाने तेरी मामा, ये आगे तेरी मामा, और जब तू मुस्कुराए तू मेरा दिल ले जाए। हाय कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। तू करना एकदम है, ये जोड़ी सुपर हिट है। आइश्क मुझे आए एक दूजे में खो जाए। हाय कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। कई साल से साथ बिताए, अब आजा घर बसाए, एक दूजे को अपनाया, सपना मैंने है सजाया। एक मिनट क्या? कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना का जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, सपने तो बहुत सजाए पर तू पूरा ना कर पाए, कलाकार की लगाए पर कला बनाए
हो जाएगा। I don't। जो प्यार किया था झूठा, इकरार किया था झूठा, दिल पे ये तीर चलाए, इस प्यार को कहते हैं हाय हाय। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, उड़ गए तो तेरे, तेरे तो उड़ गए तो तेरे, तेरे तो उड़ गए तो तेरे, तेरे तो उड़ गए तो तेरे। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना। भाई साहब मस्ताना होता है प्यार, मस्ताना होता है प्यार। भूल के सारी बातों को मैंने जीना अब सीखा है, हार के भी ना हारा है, खुद को ऐसे अब सींचा है। तो फिर अपनी उम्मीदों का बोरिया बिस्तर बाज, मैं चला समाज की बात। पाना हर मंजिल को अब है हर मुश्किल से टकराना, जीत मिले सम्मान मिले कुछ ऐसा अब है कर जाना। दुनिया ने ठुकराया है, कोई भी सिखाया है, दुनिया ने ठुकराया है, मुझको अब ये सिखाया। मेरे पापा होम मिनिस्टर को जानते हैं। स्वागत है, आइए। जीत नहीं इस दंगल में, हार ही तेरा साया है, जीत नहीं इस दंगल में, हार ही तेरा साया है। मेरा बाप बम्बानी है। चोट लगी है मुझको, पूछे तो अब हाल मेरा, आज मेरा भी कोई सोचो तो और इस तरह मैं जहां भी गया मुझे अपमान किया गया। समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि तू कलाकार बनना चाहता है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तू चाहते हैं लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये सबसे बड़ी दुनिया की प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हर साल की उम्र के बाद अपने डिसीजन को लेने के लायक होता है, लेकिन नहीं, अपने माँ बाप के मुताबिक, अपने रिश्तेदारों के मुताबिक और इस दुनिया के मुताबिक कोई बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं। एक्चुअली शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए और हर चीज के लिए बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन जब बात अपने और अपने करियर के बारे में डिसाइड करने की आती है तो ना मुन्ना ना, अभी तुम बड़े नहीं हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ ही कहाँ है। हमने ऐसी बात सफेद नहीं कराई, ये डायलॉग मारकर तुम्हें चुप करा दिया जाता है। एक्चुअली ना दिस वे चाइल्ड ग्रोस फिजिकली मेंटली सोशली इन हिज ओन माइंड। यार आर्टिस्ट तो बनना है, क्या गुनाह कर दिया है बोलकर। किसी और आर्टिस्ट को देखकर तो ऐसे खुश होते हैं जैसे पता नहीं खुद का बच्चा हो, लेकिन अगर कोई और अपना बच्चा ये बात करने की आर्टिस्ट बनना है तो बर्दाश्त नहीं होती। यार तुम काल रात के पेरेंट्स को देख ले, जब तक बेचारा अच्छा मार्क्स आता है तब तक कहते बेटा खूब खाओ, अच्छी पढ़ाई होगी। जिस दिन बेचारा गन्ने में जाना शुरू हुआ उस दिन उसको कहा बेटा अच्छे से खाना खा रहे, इसको बनाना भी सीख ले, बड़े होकर ठेली ही तो लगानी है। यार माँ बाप की नहीं प्रॉब्लम है, दोनों हाथों में लड्डू। पहले कहेंगे कि बेटा जो बनना बन लो, उसके बाद कहेंगे अगर ये नहीं करा तो अपनी इमोशनल ब्लैकमेल कर तुमको वापस बुला लेंगे। और फिर कई सालों बाद जब तुम उनके पास वापस जाओगे और कहोगे कि आपने हमसे क्यों बनवाया, तो कहेंगे हमने तो नहीं कहा था, हमने तो फुल फ्रीडम दी थी, हमने तुम भी वापस आए। यार हद हो गया यार। और ये बात जब तेरे रिश्तेदारों को पता लगेगी, भाई तू जानता भी नहीं होगा कि वो तेरा दूर का रिश्तेदार है, उसको तेरे रिजल्ट में तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। मेरी करना ब्लैकमेल है इनका और कुछ नहीं है, ऐसे करते रहते हैं और तुमको दोषी ठहरा देते हैं, ये प्रॉब्लम है। यार रिश्तेदार वाले तो मेरे साथ भी हुआ था, ना प्यार ने साथ दिया, ना समाज ने साथ दिया और ना ही परिवार ने साथ दिया। मुझे और मेरी कला को सबने किनारा कर दिया और इस तरीके से ये कलाकार बना कला कबाड़, कला कबाड़, कला कबाड़, कला कबाड़, कला कबाड़, कला कबाड़। दुनियादारी मिलेगा कैसे सबका प्यार, हाथ पे हाथ धरे वो बेटा बनना मानी उसके हाथ। सम्मान मिलाना कला
बनाने से लेकर 2 वक्त की रोटी कमाने तक, एक रॉकेट बनाने से लेकर उसे चांद पे पहुंचाने तक, देश का संविधान लिखने से लेकर देश को चलाने तक, एक नाटक लिखने से लेकर उसे सब में दिखाने तक, सब कला है और उससे जुड़े लोग कलाकार। जरूरी है कि हम उस कलाकार की कला की कद्र करें, उसे सम्मान दें और उसे आगे बढ़ाएं। जरा सोचिए, अगर इसी तरह हर एक कलाकार को नीचे गिरा दिया गया तो क्या हमारा देश कला में आगे बढ़ पाएगा? क्या हमारे देश में ऐसे महान कलाकार पैदा हो पाएंगे? इंजीनियरिंग, डॉक्टर, IAS, MBA और ऐसे कई कोर्स करना आसान नहीं है। ये सब ये कला है और इसे कर रहे लोग कलाकार। काम चाहे कोई भी हो, छोटा या बड़ा, मेहनत सब में बराबर लगती है। और जब कोई कलाकार जी तोड़ मेहनत करता है अपने आप को सिद्ध करने के लिए, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि उसका सहारा बने, उसे स्वीकार करें, ना कि उसका बहिष्कार करें। और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपकी खुशी हो, जिसमें आपकी कला हो, जरूर उसे कीजिए, उसके सिवाय किसी चीज को मत कीजिए। एक कलाकार बस इतना ही चाहता है कि उसकी और उसकी कला की कोई इज्जत करे। और याद रखिए, कभी भी कोई भी जाति या धर्म किसी भी कलाकार की कला के आड़े ना आने पाए। भले ही एक कलाकार की शरीर खत्म हो जाए, लेकिन वो जिंदा रहता है लोगों के दिलों में, और उसे जिंदा रखती है उसकी कभी ना मिटने वाली कला। मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, जहाँ सपनों को सम्मान मिले वहाँ जाना मैं चाहता हूँ। बेकार नहीं कलाकार हूँ मैं, बेकार नहीं कलाकार हूँ मैं, बेकार नहीं कलाकार। अरे ये तो वही है, ये वही है। अरे हाँ, ये तो वही है। अरे ये वही है, ये वही है। अरे हाँ, ये वही है। सर आप वही हो ना जिन्होंने वो किताब लिखी है कला कबाड़? अरे वो तो मैंने भी पढ़ी है सर, वो मैंने पढ़ी है सर। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, वो तो मर चुका हूँ। कलाकार का सहारा बने, उसे आगे बढ़ाए, उसकी कला की कद्र करें, उसको स्वीकार करें, उसको पहचान दें और उसकी पहचान करें। और याद रखें, ऐसा संघर्ष किसी और को ना करना पड़े और कोई भी ऐसा कलाकार कला कबाड़ ना बने। हम थे समाज और ये थी हमारी छोटी सी पेशकश, कला कबाड़। Wow, what a wonderful performance. Guys, please give a huge round of applause once again to our Theatre Society Samagra. Before we move forward, I would request Dr. Vinita Gupta to kindly give a bouquet to Mr. Satyanarayan Garg, Honorable Trustee, Mates. Now, I would like to proceed further with our event by inviting Mr. M.K. Bhatt on stage, Director Memes, to enlighten us with few words. It's great honor to be here on in this amphitheater. I was witnessing a different MPBN after my days when I was in Bhopal at Rangmanch. Today I feel highly honored to be among you. It's great pleasure to have our distinguished guests, Honorable Chairman Sir, a doyen of knowledge, person par excellence, and above all, a great champion of freedom of expression. I am honored to welcome Satyanarayan Garg ji, our trustee, who always remains in the forefront for such events. I feel honored to welcome our distinguished guests from Hindu, who are just reminding me of my old colleagues way back in 90s, M.K. Vinuji, Shishir Sinha ji and all those. I
from a core of heart welcome our guests from Delhi University and other guests. I am equally honored to see Professor M.L. Goyal in front of us. Aditya Awasthi ji, अच्छा लगा कि आज मिलजुल के मेम्स की टीम थी. बहुत अच्छा मुझे लगा जब मैंने मेम्स के बच्चे भी देखे और बीजीएमसी दोनों विंग्स के बच्चे देखे. पहले तो मुझे एक, हम सवेरे जब वंदना करते हैं तो जरूर बोलते हैं शारदा वारदा देवी मुखीदाता सरस्वती शरण्ये त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते. यानी एक्सप्रेशन इज नॉट न्यू टू अस. एक्सप्रेशन इज इमॉर्टल विद अस फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल. राइटर कभी गरीब नहीं होता, लेकिन जरूर होता है कि उसने कितना अपने मन से लिखा है. ये एक बड़ी आजकल बड़ी चीज बनी हुई है. और दूसरा मैं ये बताऊंगा, जो हमें विरासत में मिली है, हेरिटेज मिली है, वो एक अपने आप में अद्भुत चीज है. मैं सवेरे सोच रहा था कि नॉलेज हैज नेवर बीन द डोमेन ऑफ एनी सेक्ट, एनी ग्रुप. Rather it has been with us over the years in a compassionate manner, transformed from one generation to another generation. Ramcharitamans was written by Goswami Tulsidas. Valmiki ji also wrote it, and down to Abhinavgupta ji, Bhairav Sutra, down to Maharaja Agrawal ji, who gave us the concept of socialism. Now, I mean to say that knowledge has never remained confined to any sect, to any person. It has transcended from one generation to another generation. My pleasure to be here and to start the deliberations I have, and to get wise words from our chairman, sir. But I would not hesitate to say one thing, that things have not transmitted from generation to generation in the way they should have been. मैं आज सवेरे पढ़ रहा था कश्मीर की हिस्ट्री को, और हम often यूज करते हैं, we use Kashyap Rishi as the first founder of Kashmir. मेरे दिमाग में ये आ गया, ये तो हमने नीलमत प्रॉन से लिया है, कलहन ने यूज किया और नीलमत प्रॉन से लिया है. लेकिन जब वो कहता है कश्यप ऋषि किसके बेटे थे, किस ऋषि के बेटे थे, वो हम एक्सेप्ट करने से रहे हैं. आदि बात को स्वीकार करना, ये हमारा एक अजीब विरोधाभास रहा हमारे इतिहास से. हम लोगों से आदि बात मान लेना और आदि बात को इनकार करना. इसलिए आवश्यकता है अच्छे जर्नलिस्ट की, अनबायस्ड जर्नलिस्ट की, जो न केवल समाज को, जैसे हमारे चेयरमैन साहब का उद्देश्य भी यही था इस डिपार्टमेंट को लाने में, कि इम्पार्शियल, अनबायस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रिएट क्रिस्प टू द कोर, ऐसे लोग हमारे जर्नलिज्म में आ जाए. अब इस प्रयास में हमारा कॉलेज भी 2-4 साल से लगा है. बड़ी खुशी होती है जब बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर प्लेस होते हैं, और यही लगता है कि एक दिन वो जरूर आ जाएगा जब इतिहास को अच्छे तरीके से इम्पार्शियल, अनबायस्ड, आज भी हम कहते हैं कलहन ने जिस तरीके से लिखी थी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज द मोस्ट साइंटिफिक वे. आज भी हम कहते हैं अभिनव जी का त्रिका शास्त्र अपने आप में बेस्ट वे ऑफ लिविंग है. तो यहाँ इतना ही मैं कहने जा रहा हूँ कि अच्छे जर्नलिस्ट बने. और कश्मीरी पंडित्स में एक और कल्चरल प्रॉब्लम है, दे नेवर स्टॉप इन हाईलाइटिंग व्हाटएवर इज गुड, चाहे उसके लिए कहीं तक उन्हें जाना पड़े. आज आपको एक बात मैं बताऊंगा, हमारे कॉलेज ने कल गोल्ड मेडल लिया मेम्स ने. तो इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एडवर्टाइज करना है, इसको इसलिए कह रहा हूं कि अब मैंने, आप लोग भी, मुझे अवस्थी जी ने कहा कि कंपटीशन हो रहा है, इसमें भी आप अपनी पूरी मेहनत से और आगे भी मेहनत करके हमें गोल्ड मेडल ही चाहिए.
क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी का टाइम गोल्डन एरा के आसपास ही हम मानते हैं, मतलब वो सुनहरा मौका था जब इंडिया अपने टॉप पे था। नॉट आफ्टर दैट गुप्ता पीरियड, वो तो बाकी दैट इज हिस्ट्री रिटन बाय वी पीपल, बट जो हमें पौराणिक कथाओं में है तो हमने प्रूव करना है। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप सभी का बड़े from the core of heart I welcome all of you for this seminar and subsequent workshop also, and I hope you all will enjoy with full freedom and will try to come out with things which are novel for the society. Thank you very much. Good afternoon, one and all present here. Welcome to the second segment of the show. I, Mahima Agarwal, along with Rudraksh Jain, will take the show forward from here. I request Ms. Nidhi Chaudhary to present a bouquet to Mr. Devendra Singh, a renowned photographer. Photo editor, The Hindu. We are delighted to have you, sir. I request you to please come on stage and share some of your valuable knowledge with us. Hello. Only one thing I have to say to you, one color about what I learned is here कि पैशन होना चाहिए आपके पास। अगर आप जर्नलिज्म में आ रहे हैं पैशन रख के आइए, गांधी जी के पीछे मत आइए। दैट्स ऑल। श्री सत्यनारायण जी, गोयल साहब, भट्ट साहब और हमारे निमंत्रण पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी से विभिन्न कॉलेजेस से आए हुए सभी हमारे मेहमान, बहुत अच्छा अभी एक नुक्कड़ नाटक देखा। लगातार अपने यहाँ कोई न कोई कार्यक्रम चलते रहें। एक वाइब्रेंट सोसाइटी बनाने के लिए एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों, और इस साल हमने उसके लिए प्रयास किया है। अभी कल और परसों 22 कॉलेजेस के वॉलीबॉल के प्लेयर आए थे। उससे पहले लगातार 3 महीने में हमने लगभग 15 दिन एक्टिविटीज़ में लगाए हैं, और आज छायांकन जो फोटोग्राफी का हमारे जर्नलिज्म मास मीडिया के स्टूडेंट्स और प्लस उनके बीबी और बीकॉम के साथी भी इसमें सम्मिलित हैं। अभी जो देखा और उसके बाद हमारे हिंदू के फोटोग्राफर नारंग साहब ने जो कहा, पैशन तो सब में चाहिए, थोड़ा सब्र चाहिए, धैर्य चाहिए। और आज समाज में मुझे लगता है कि धैर्य की कमी होती जा रही है और सब में कमी होती जा रही है, परंतु हर व्यक्ति दूसरे से कहता गुस्सा नहीं करना चाहिए और स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता। दूसरे से कहते हैं कि टॉलरेंट होना चाहिए। अपने अंदर झांक के देखें तो हम कितने टॉलरेंट हैं। इंसिडेंट होंगे, 125 करोड़ का देश हो, उसमें रोजाना घटनाएं होंगी, अच्छी भी होंगी, खराब भी होंगी, पर हमने संप्रेषण किस चीज़ का करना है, बनाना क्या चाहते हैं। आखिर समाज को जो बनाना चाह रहे हैं उसकी बढ़त होनी चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, या जो नहीं होना चाहिए उसका हो। ये जिस दिन हमारे समझ में आ जाएगा, हमारा विवेक इतना जागृत हो जाए कि मेरे किस शब्द से समाज का, देश का भला है और किस शब्द से उसका बुरा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो सकती हैं। परंतु दूसरे की ओर उंगली उठाए रखें। आज जर्नलिस्ट को लगता है कि पॉलिटिशियन बेईमान है, पॉलिटिशियन को लगता है जर्नलिज्म बेकाबू हो गए, जुडिशरी को लगता है कि सब बेकाबू, मैं ही ठीक हूँ। सारे ही अंग यदि शरीर के आपस में लड़ेंगे तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। मैं समझता हूँ कि मैं राजनीति में भी रहा, लेजिस्लेचर में भी रहा, जिनको कानून बनाना है वो कानून बनाते समय गायब हो जाते हैं, पढ़ के नहीं आते। कैसा एक्ट बना उसके बाद उनसे पूछो, मुझे तो मालूम ही नहीं कैसा बना। तो जर्नलिस्ट को काम है रिपोर्टिंग करना, जो है उसको बताना। फोटोग्राफर ने जो देखा है, जो उसके कैमरे में आए वही दिखाना, परंतु उसको भी मॉर्फिंग कर दें या अदल बदल कर दें, चेहरा किसी का लगा देंगे, बाकी हिस्सा किसी का लगा देंगे, तो फिर वो न्याय किसके प्रति कर रहे हैं। मजाक में तो सब चीज़ चलेगी, परंतु सीरियस चीज़ों के अंदर तो सीरियस होना पड़ेगा। जुडिशरी का काम है कानून के हिसाब से न्याय करना, वो कानून बनाने लग गए हैं। कानून बनाते समय ये भी भूल जाते हैं कि कानून जो बनेगा इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा।
पिछले 1 महीने के 3-4 जजमेंट ऐसे हैं कि जुडिशरी के ऊपर बोलने में पहले हम लोग झिझकते थे। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, परंतु आज लगता है कि किसी न किसी को बोलना शुरू करना पड़ेगा। ग्रीन टैक्स लगाने का काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कब से उसने अपने ऊपर ले लिया कि हर व्हीकल पे लगेगा, हर घर पे 500 रुपये लगेंगे। और हम इन चीज़ों को, जो मास मीडिया इन चीज़ों को ढंग से लोगों तक संप्रेषित नहीं कर रहा है कि उनका काम नहीं है ये, उनका काम है जो करना चाहिए। कोलिजियम हो ना हो, नेशनल जुडिशियल कमीशन हो ना हो, ये तो बता सकते हैं इसमें ये कमी है। आप इसको डिफाइंड करिए कि ये 2 एमिनेंट पर्सन को वेल डिफाइंड हों, ये कहने का तो औचित्य है, परंतु ये नहीं होगा। और अब ये होगा तो सब हम अपनी जुडिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं, और वही माँ बाप कर रहे हैं। बच्चों से उनकी प्रतिभा को देख के, उनका मन देख के उनको क्या पढ़ना चाहिए ये नहीं कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, शायद पहले से ही है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को नंबर बढ़िया है 8वीं में, उस समय बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था पहली बार दिल्ली में, इसलिए साइंस लेनी पड़ेगी और साइंस ले ली। साइंस लेके इंजीनियर बनो, कोई कुछ बनो, परंतु प्रतिभा देख के, मन देख के उसको यदि चॉइस करने का अधिकार हो तो शायद मैं इतिहास लेता या पॉलिटिकल साइंस लेता। और वही अभी हमने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कि कितना ज़्यादा बोझ बालकों के ऊपर हम लाद रहे हैं, और फिर कोटा भेज रहे हैं 2-2 साल, वहाँ फिर वहाँ सुसाइड होंगे, क्योंकि वो इतना कंपटीशन है कि सीटें अगर पूरे देश में 30,000 मेडिकल की हैं और अपियर करने वाले अगर 8 लाख होंगे तो क्या होगा। तो इस देश के अंदर सब चीज़ों को ठीक करना है, कोई करने के लिए बाहर से नहीं आएगा। ये हमारी आने वाली ये जनरेशन, और जो आज हमने इनको पढ़ाने का या दिशा देने का ठेका लिया हुआ अपने मन में, तो पहले तो हम समझें कि इस देश को कैसा निज़ाम चाहिए। डेमोक्रेसी चाहिए, पर इतनी स्वच्छंद डेमोक्रेसी चाहिए तो हम चीन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चीन के अंदर यदि शून्य डेमोक्रेसी है, बाकी उसके कारण से उसकी तरक्की की रफ्तार 1990 में ही हमने तरक्की वो शुरू की, जिसको ओपनिंग अप बोल रहे हैं, तो आज वो हमसे 30 साल आगे पहुंच गया, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी का ये रूप नहीं है, ना जुडिशरी का रूप है। एक निर्णय हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। उसके कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि पूरे वर्ल्ड का वो जो हब बनने के बाद आज उसको कूलिंग डाउन करना पड़ेगा। परंतु हम डेमोक्रेटिक सेटअप है, और इस देश में हर 6 महीने में चुनाव है। एवरेज शायद 6 महीने की भी नहीं होगी। एक चुनाव खत्म नहीं होता, 8 तारीख को खत्म होगा तो बंगाल की चर्चा अभी से शुरू हो जाएगी, क्यों हमारा देश शुगल है। ये इन चीज़ों में ही हम लगे रहेंगे और एक दूसरे ऊपर कटाक्ष करते रहेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है वो तो शायद सबकी है, परंतु उसके लिए जो प्रयास करना है, एक अनुकूल माहौल बनाना है। जो माहौल बना था, 12 महीने माहौल अच्छा रहा। इस देश में मैं समझता हूँ 4 बार चांस मिला है। 1947 में देश की आज़ादी के समय हमें बहुत बढ़िया चांस मिला था कि नए ढंग से इस देश का आगे रचना करके गांधी जी के सपनों का भारत, सुभाष के सपनों का भारत, शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत मिलके बनाए। सरदार पटेल ने एक ज्योग्राफी एक करके दे दी, परंतु आगे आने वाले लोगों ने उसको ठीक ढंग से नहीं चला पाए। फिर मौका मिला हमें 1977 में, फिर उस मौके को 1-1.5 साल में हमने गंवा दिया। फिर मौका मिला राजीव गांधी में, एक नयापन लगा, वो भी 84 के बाद 87-88 आते आते फिर गंवा दिया। फिर अवसर आया अटल जी के टाइम, परंतु एक वोट से जानबूझ के उस सरकार को पहले डिरेल कर दिया और फिर धीरे धीरे अति विश्वास के कारण चली गई। आज फिर अवसर आया था, 2014 में आया हुआ है। इस अवसर को हमें सबको मिलकर, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री से ऊपर अब कुछ नहीं बन सकता, डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति से ऊपर नहीं बन सकते थे, पर एक सपना जो देखा था, जो उन्होंने जो कुछ लिखा है, और जो लिखा है खास तौर पर मीडिया के ऊपर जो कुछ लिखा है, वो हमने 2 जगह लगा के भी देखा, उसको भी सब पढ़ें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परंतु अभिव्यक्ति किसके लाभ के लिए हो, ये अभिव्यक्त करने वाले को स्वयं को देखना पड़ेगा। क्या ठीक है क्या गलत है, सबसे बढ़िया हमें भगवान ने सबको एक अपना दिमाग दिया हुआ है, उसका प्रयोग करें और वातावरण को देख के ना बहकर अपना अच्छे से अच्छा कैरियर बनाएं, माँ बाप की सेवा करने की प्रवृत्ति डेवलप हो,
अपने समाज की एक करने की प्रवृत्ति बढ़े, अपना देश आगे बढ़े और उसके आगे यदि महामानव हम बन सकें तो वसुधैव कुटुंबकम की सोचें, पूरे धरातल पर रहने वालों की सोचें, पूरे चराचर की सोचें, पेड़ पौधों की भी सोचें, नदी नाले और पहाड़ों की भी सोचें, और वो सोचने लग जाएंगे तो एक परफेक्ट यूटोपियन जैसा एक समाज होना चाहिए। गवर्नमेंट तो शायद नहीं बन सकती, एक समाज बन सकता है। कई देशों ने करके दिखाया, बेशक छोटे देश हैं वो, हम भी कर सकते हैं। ये एक भावना मन में हो और कर सकने की भावना हो, कुछ बनने की बजाय कुछ करने की भावना ले आए तो निश्चित तौर पर हम जो कुछ ये महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर पिछले 17 साल से जो कोशिश कर रहे हैं, आज 5000 के करीब हमारा इस कैंपस में वो यूथ है जिसके अंदर जज्बात है, जिसके अंदर दम है, जिसके अंदर जोश भी है। थोड़ा थोड़ा उसको होश दिलाने का काम हमारे 300 फैकल्टी का है, वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। और देश के लगभग 30,000 स्थानों पर हम पहली, दूसरी, तीसरी लायक शिक्षा देकर भी कर रहे हैं। एक टीचर 3 क्लास को कैसे पढ़ा सकता है, 30,000 स्थानों पर वो काम भी हम कर रहे हैं। एक सपने हैं हमारे पुराने लोगों के जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था, इस देश को जिन्होंने संभाल के रखा है, आज उस देश को फिर से उसका खोया हुआ गौरव प्राप्त हो, उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। उसी के निमित्त हम सब लगे हुए हैं। आज आदित्य अवस्थी जी ने भट्ट जी के निर्देशन में, सब पाठक जी हों या भटनागर जी हों या हमारी जितने भी इस सब काम में लगे हुए हैं, और हमारे मेहमान आए हुए हैं आज जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, वो लोग भी आए हुए हैं स्पॉन्सरशिप में या किसी रूप में, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दिन आज हम सीखने की प्रवृत्ति लेके आज पूरा इन्वॉल्व होके इसी ढंग से लगे रहें। बहुत अच्छा लगता है जब चेहरों पे मुस्कान हो। आज इस देश में सब कुछ है, मुस्कान जो गायब हो गई, 4 साल के बाद बच्चे से नर्सरी में उसको पेल देते हैं और उसके बाद उसकी जो मुस्कान है सहज, वो गायब होनी शुरू हो जाती है, और 11वीं आते आते 12वीं आते तो बिल्कुल वो डिप्रेशन में आता है। तो वो एक बार फिर से हंसते चेहरे नज़र आएँ, और वैसे हंसते वह फोटोग्राफर को भी अच्छा लगता है, क्यों नारंग साहब, हंसते हुए कहते हैं ना जरा मुस्कराइए, तो ऐसे मुस्कराना ही ना पड़े, एक नेचुरल वे में आए, वैसा हम काम करें। एक दूसरे को देख के मुस्करा के, यदि आप बिना बोले भी मुस्कराएंगे तो वो भी आपको रिस्पांस देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words of wisdom. I really hope that your words will benefit each one present here. I request Ms. Nidhi Chaudhary to present the bouquet to Ms. Pravesh Sharma, a distinguished faculty member at GD Goenka. I now request our chairman, sir, to present mementos to our esteemed guests. Why you started with black and white? Give the experiment. Was the beginning? Yes. The beginning of it. And ma'am, when it was, you know, there were like when televisions were invented, it was every life was black and white. It was color was invented later. So black and white was the beginning of it. Well situated. In other universities. सबने इसमें पार्टिसिपेट किया। So these are the names of the participants. ये भी लिखवाने की जरूरत है। लिखो नाम लिखे वैसे आपके पास तो आप लिखने को बच्चे का नाम लिखा
बच्चे का तो लिखा है कॉलेज का नाम सर, बाइसनेस ना हो इसलिए नहीं। कहाँ का है चित्र? ये कैप्शन हुए अभी वो ब्लैंक एक्चुअल है तो सब। हाँ यस सर। कॉम्पिटिशन भी का अलग है। हमारे दीनदयाल कॉलेज में इसमें बहुत ही अच्छी पिक्चर हो रही है, टीचर है मिलने के बाद उससे शायद किताब भी निकाल दी। अच्छा सर, दीनदयाल से एंट्रीज है हमारे पास, आए हैं बच्चे। नहीं ये हिमाचल प्रदेश बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। आपके टाइम में जो बैच आया था, जो आउट ऑफ 10 9 बच्चे आए थे टॉप में, उससे बेहतर बैच आया। अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट उन्होंने यूज करके दे डिस्प्लेड जब तक आप बेस्ट एफर्ट नहीं देंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। I hope you liked it. डेफिनेटली दीपाल से छोटे थे। ये सारा इन्होंने ना वाइल्ड लाइफ का पूरा वाइल्ड लाइफ होती है जंगल का पूरा वहाँ से सर वाइल्ड लाइफ के लिए वाइल्ड लाइफ की डिस्प्ले कहते ये कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो जिसने भी किया है रहती है लगातार, कभी कांस्टेंट होती है। कैंपस से भी आए, नॉर्थ कैंपस से भी। फैक्ट की बॉल है। हाँ अपने बहुत अच्छे, ये अपने जो क्लब है उनके बच्चे। ये अपने स्टूडेंट्स शॉपिंग भी की सब फोटोशॉप उसी काम के लिए। एलुमनाई के लिए और करेंट के लिए ये बच्चों के लिए प्रयास लाइटिंग करके उनका खलीज टाइम वो बताना ज़रूरी है। और लड़का आजकल खलीज टाइम्स में चला गया है, आशीष थॉमस स्टोरीज आती हैं।